और मतलब इस तरह के छोटे छोटे शॉर्ट्स जैसे हम अक्सर हम एड्स देखते हैं दिवाली से रिलेटेड, कितने बड़े बड़े मैसेज होते हैं वो, तो उन मैसेजों का लोगों पर असर पड़े। और सबसे दूसरी चीज़ है कि लोग अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे रोकें, बात करें उससे कि देखो यार यहाँ देखो अगर हम गंदगी करेंगे तो ये गंदगी जो तरीका आप क्यों कर रहे हो ये एक अलग चीज़ है। यार देखें अगर हम यहाँ कचरा फेंकेंगे तो यार किसी बदबू हो जाएगी, हमारा घर है आपका भी घर है, तो इसको अगर साफ़ रखा जाए तो क्या ज़्यादा बेहतर है हमारे मोहल्ले। ये एक जुमला होगा। दूसरा जुमला होगा कि आपने यहाँ कचरा क्यों फेंका। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है दिल्ली का। इस वीडियो का टाइटल है $0.20 Delhi metro ride longest in India. So start करते हैं। I have just arrived in Delhi and one of the first things I'm going to do is hop on a metro. It has the largest metro here in India. Very modern, and I want to see how it compares to Bangalore, Mumbai, Hyderabad. I've been taking some metros. This metro also goes right out of the airport, so it's a convenient other option. So far the vibes of the airport are very, very clean and quiet. Sometimes at airports you'll walk out the front door and there'll be just a mob of people, often taxi guys, trying to get you to ride in their taxi. Here it's not like that at all. It's like a big spacious walkway, birds chirping in the distance. And here we go, 4-minute walk from my terminal. We're gonna hop on the metro here and it should go pretty close to my hotel, which is in Paharganj, one of the popular, inexpensive areas of town. A lot of backpackers go there. Metro, fastest metro in India. Let's see. Metro station, checking out their beautiful artwork here. Look at that. That is like Monet-esque, maybe a Picasso. Whoa. Okay, we got Aero City. I don't know, Shivaji Stadium. Airport Express Station, okay. Comfy so far. We have air conditioning, plenty of seats. There's even a do not sit here markings that people are respecting. So seems like not too crowded. I like it. Took a bunch of metro trips in my time in Delhi. So I bought a ticket for 20 rupees, but I know the distance is farther than that. I think I need to get off and buy another ticket. I went to Delhi's luxury Aero City destination. You can check the video. So I finally found a map in here and I'm seeing that I need to go on the yellow line, one stop to New Delhi, and then take the orange line almost all the way out to the airport where we're gonna see Delhi Aero City. Check that out in the next video if I make it there, or else it's gonna be spending 24 hours in the metro station. World Mark 1, then we have World Mark 2, and then we have World Mark 3, and we're gonna try to see all of them.
I went to Gurgaon, India's cyber city, which I also have a video about. And this is about as far out as you can go because it's in the next state of Haryana. Thinking I have to go 1, 2, 3 stops to Cyber City from platform 2, which is around here somewhere. This metro out here is a rapid metro. Seems slightly more modern than the typical Delhi metro, but both are good. I'd also use the metro to see popular landmarks around the city. To go to the Red Fort, you get off at Lal Quila. Boom! You're right there. We have the Chandi Chowk metro station. It'll take you right near the Red Fort. Chandi Chowk Market, all the good stuff downtown. No traffic, no haggling. There are a lot of different ways you can travel around Delhi. We've got electronic rickshaws, we got gas-powered rickshaws, we got bike rickshaws, we got motorized bike rickshaws, we got taxi services like Uber. My favorite way is the metro. There is a nice cool breeze blowing through here today. It's usually a very cool temperature. It's nice and mild. If you're new to the Delhi Metro or you've ridden it before, here are some facts that may surprise you. Delhi's metro is the largest metro in all of India. There are 9 different lines named after colors. We have red, blue, yellow, green, violet, magenta, pink, orange, and aqua. Delhi's metro carries an average of 1.5 million passengers every single day. I've succeeded in the first part of my journey here. The unfortunate part is the lines are a bit longer here. Delhi's metro is the second oldest in India. Kolkata's is the oldest, started in 1984. We have a very old map of Delhi here. Check this out. Delhi's metro started in 2004. Delhi's metro has modern technologies like regenerative braking systems so they don't wear down over time. They practice rainwater harvesting. There is a Sari guard in the escalator. 2011, the United Nations certified the Delhi Metro because it reduces 630 tons of city pollution every year. Better stay healthy with some mineral water before traveling. It's the summertime here in Delhi and it is scorchingly hot. Looks like it has some masala spices in this. Very good. Had some salt and spices and deliciousness. Delhi's metro has underground sections. Some are as deep as 45 meters. Unlike some things in India, Delhi's metro is 99.7% on time. So the Airport Metro Express is a 22-kilometer fast rail network zipping out to the airport. There's a lot less people going to the airport than to metropolitan places, but 50 rupees to go all the way almost to the airport. Not too bad. The airport metro is a little bit nicer than the other metro, although that's pretty good too. But this one, yeah, it's posh. I'm traveling to every Indian state, so if you want to see the next video, subscribe and click the bell for notifications. There are racks for your luggage. You can also check out more of my Delhi adventures by watching the links in the description. जी जनाब, मेट्रो का सफ़र दिल्ली पहुँचे, लेकिन अभी आउटडोर और चीज़ें वगैरह ये सारी चीज़ें अभी नहीं दिखाई, कवर करेंगे। हाँ, अच्छा, हर तरह का चिंची, इलेक्ट्रिक चिंची, गैस चिंची और गैस चिंची, बाइक वाला चिंची भी, और फिजिकली जो बंदा चलाएगा ना साइकिल चिंची, वो भी था। तो सब फिजिकली चलेगा। यही कह रही थी कि अभी लंबा
स्टे होगा इनका, क्योंकि ये अभी डिफरेंट स्टेट्स डिस्कवर करेंगे या एक्सप्लोर करेंगे और बहुत सारी जगहों को दिखाएंगे। जब बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स भी दिखाएं जो बड़ी मशहूर हैं इंडिया में, बड़ी आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं रास्ते में जो पड़ रही थी अच्छी हैं। दिल्ली सिटी के हवाले से हम वैसे भी जानते हैं कि वहाँ पे एक तरीके से उस जगह को गढ़ समझा जाता है, हब समझा जाता है। वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, और फिर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिल्ली बहुत मशहूर है। दिल्ली एक ऐसा सिटी है शायद हर इंसान जानता है बाय नेम उसे। और दूसरी चीज़ है कि दारुल खिलाफा, दारुल हुकूमत, कैपिटल है, तो पूरी ज़ाहिर सी बात है एक हब है पॉलिटिक्स का, और जो भी मतलब है कि बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट के डिपार्ट्स हैं, वो सारी दिल्ली में ज़रूर। अच्छा, मैं तो काफ़ी अर्से तक ये समझती थी मुंबई है कैपिटल इंडिया का, नहीं दिल्ली, लेकिन मुझे बहुत बाद में पता चला और ये न्यू दिल्ली, फिर न्यू दिल्ली में एक एरो सिटी है, एरो सिटी जो बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि अपने आप में ऐसा लगता है कोई एक सिलिकॉन वैली टाइप हो, और इंडिया में इन फ्यूचर कई जगहों पे सिलिकॉन वैली बनेगी। अच्छा, इनको हमें इसलिए भी फॉलो करना चाहिए इस भाई को, क्योंकि इन्होंने पूरा इंडिया घूमना है, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा खासा हम इंडिया दिखाएंगे। इससे पहले हमने इनकी वीडियोस देखी हैदराबाद के हवाले से, हैदराबाद की इन्होंने काफ़ी मशहूर जगह दिखाई। हाँ, अच्छा, हम रामू जी फिल्म सिटी के हवाले से सोच रहे थे क्यों नहीं दिखाया, तो उन्होंने प्रॉपर एक अलग ही व्लॉग उस पर ऊपर बनाया था, तो बड़ा अच्छा लगा था। अच्छा, एक पार्क भी था, IT पार्क था। अच्छा, सफाई कैसी थी मेट्रो की? सफाई तो मैं वाकई पूछना चाह रही थी, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। आप हमें भी कुछ 4-5 चीज़ें बता दें, कुछ टिप्स दे दें, कुछ अपने रूल्स रेगुलेशन बता दें जिसे आप बड़ा फॉलो करते हैं, और उसके बाद ऐसा इंडिया, इतना साफ़ सुथरा इंडिया देखने को हमें मिलता है। अच्छा, आत्मनिर्भर इंडिया, न्यू इंडिया, लेकिन मैं ये कहूँगी नीट एंड क्लीन इंडिया। इसके ये मतलब देखिए, ये पॉसिबल, आप यकीन करें, है तो बाहर की ब्लॉगर, लेकिन वो भी इतने इम्प्रेस्ड हुए कि वो तारीफ किए बगैर रह नहीं सके कि ये इतना साफ सुथरा लगता है। देखिए, अपने कंट्री की अगर कोई तारीफ करता है वो तो समझ में आता है, बाहर का बंदा अगर कोई तारीफ करे तो और बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ है कि ये चीज़ें अवेयरनेस से आती हैं। आप आने वाली नस्ल को अवेयरनेस देते हैं, बच्चों को स्कूलों के अंदर प्रॉपर वर्कशॉप्स कराई जाती हैं, ऐसा सिस्टम हो कि प्रॉपर बच्चों को बाहर निकाला जाए और पूरे मोहल्लों की सफाइयाँ कराई जाए। हमारे साइड ऐसा होता है कि लोग एक पेज पे नहीं होते, क्योंकि एक जगह पे नहीं होते। 4 लोग अगर फॉलो कर रहे हैं किसी रूल को, तो फिर 4 लोग तोड़ने वाले दिखते हैं। जैसे कि फॉर सपोज किसी को बोलते हैं कि फुटपाथ के किनारे या दीवारों के ऊपर आप पिचकारियाँ ना मारो, तो कुछ 4-5 लोग नहीं भी मारेंगे, उनको भी बुरा लगेगा या ख़राब हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे वो गुजरेंगे, उनके पीछे ही अगर वो इंसान आ गया जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता, वो मारता हुआ चला जाएगा, वो ख़राब कर देगा। तो फिर वही लड़ाई झगड़ा, बात वही अवेयरनेस की कि सभी को अवेयरनेस सभी को दी जाए, और लिखा जाए, बताया जाए, और मतलब इस तरह के छोटे छोटे शॉर्ट्स, जैसे हम अक्सर हम एड्स देखते हैं दिवाली से रिलेटेड, कितने बड़े बड़े मैसेज होते हैं वो, तो उन मैसेजों का लोगों पर असर पड़े। और सबसे दूसरी चीज़ है कि लोग अगर कोई गलती कर रहे हैं तो उसे रोकें, बात करें उससे कि देखो यार, यहाँ देखो, अगर हम गंदगी करेंगे तो ये गंदगी जो तरीका अब क्यों कर रहे हो, ये एक अलग चीज़ है। यार देखें, अगर हम यहाँ कचरा फेंकेंगे तो यार किसी बदबू हो जाएगी, हमारा घर है, आपका भी घर है, तो इसको अगर साफ़ रखा जाए तो क्या ज़्यादा बेहतर है। हमारे मोहल्ले ये एक जुमला होगा। दूसरा जुमला होगा कि आपने यहाँ कचरा क्यों फेंका, बदतमीज़ी से, फिर वो और अड़ी करेगा, वो कहेगा तेरे बाप की जगह है, मेरे बाप की जगह, फलाने की जगह। तो ये कि अवेयरनेस होनी चाहिए, और ये स्कूलों से शुरू होती है, घर से शुरू होती है, माँ बाप से शुरू होती है। सफाई का तो अक्सर हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी जानना चाह रही थी ब्लॉगर के हवाले से कि ये फर्स्ट टाइम आए इंडिया, मतलब इससे पहले नहीं आए? हो सकता है। कि जो एक्साइटमेंट मैं इनकी देखती हूँ कि कभी बहुत चिपेस्ट ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं इसका ये है। अभी भी दिल्ली मेट्रो एक्सपीरियंस लेने के लिए, हाँ, एक्सपीरियंस करने के लिए अभी भी आपने देखा दिल्ली मेट्रो में उन्होंने बताया $0.20 की, बिल्कुल, कि आप कह रहे थे 30-40 रुपये, इससे ज़्यादा का टिकट नहीं होगा, इससे भी कम होगा। हाँ, तो मेरे हिसाब से ये शायद पहले नहीं आ चुके हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस अब भी ये उठा रहे हैं, जो लुत्फ इनकी आंखों से दिखता है, जो मज़ा, जो चाको चौबंद होकर ये देख रहे हैं चीज़ों को, बहुत ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आपने देखा बिल्डिंग्स वगैरह देख रहे हैं, बाहर का एरिया देख रहे हैं, या व्हीकल्स देख रहे हैं, तो मैंने देखा है बड़ा गौर करना, बड़ा चीज़ों को मतलब एडजस्ट करना होता है ना, उस तरीके से। मुझे लगता है इनका फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, इससे पहले ये नहीं आया। हो सकता है ऐसा ही हो, और व्लॉग बनाने में बड़ा एक्साइटेड भी है, हैरान भी है, और हमें इनके ज़रिए से हमें भी इंडिया देखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई। मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ें इनके व्लॉग में देखने को मिलेंगी जब ये बाकायदा पहुँचेंगे अपनी मंजिल पे। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।